when particular integral when particular integral capital X is equal to x into v, where v is a function of x, then what is the method and what are the procedures we have to apply, we have to write here. The main you will understood while solving the problems, or when we have to tackle few numericals, that time definitely you will understood how the uh, questions are there and how to tackle such a kind of a question. Now their writing method is 1 upon f of d into this, that is x into v, is equal to x minus 1 upon f of d, x minus 1 upon f of d into f dash of d into 1 upon f of d into 1 upon f of d into v. So this is a procedure, that is how to write when the terms are algebraic functions with any other functions like exponential or any trigonometric. It's up to your choice. अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू टू एक्स or x into e raised to 2x, if something like this, if you are getting like x into e raised to 2x, तो जो प्रीवियस मेथड पढ़े हो e raised to ax into v, उससे भी अगर सॉल्व किया तो भी चलेगा ये प्रॉब्लम, अगर इस मेथड से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा ये प्रॉब्लम. It's your choice, because x into v is there. Previously you people learned that is e raised to ax into, or e raised to ax into v, where v is also function of x. So you should remember both the method. It's your choice which method you are going to prefer. There will be a no that is a compulsion or anything will be there that in a question that is by using only this method or only this method. No way. It's your choice. It's your understanding area. You must, what method you understood, you have to utilize that method only. No need to solve from both the method, और ऐसा compulsion नहीं रहेगा. So it's your choice. Now coming to few problems so that you will understood, if such as like x into sin 2x, तब तो यही मेथड यूटिलाइज करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल वहां पे नहीं है. Now just coming, we have to solve few numericals so that you will understood very well how to tackle such a kind of problems and all. So first numerical, question will be solve x square into, oh, sorry, solve d square plus 1
is equal to x square into sine of 2x. Very short and sweet numerical is there. So we should remember this method. What are the procedures? What are the things we apply here? So solution of this numerical will be solution. So for CF, as our procedure for CF, or we can write the full form, that is a complementary function if required. For CF, d square plus 1 equal to 0. So I think it's very simple things is given, that is what will be your CF and what will be your the roots of the this d square plus 1. So I think it is in terms of imaginary. So I'm writing this part as directly, that is a y is equal to e raised to 0x c1 cos of x plus c2 sine of x. तो होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज छोटा सा सिंपल सा रूट है, डी स्क्वायर प्लस 1 है, आप कैल्सी में रख दोगे यू विल गेट डेफिनेटली प्लस minus I, because d square plus 1 we can convert in very easily form like d square a square minus b square format. तो उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस लेना होगा और आई स्क्वायर लेना होगा, तो d माइनस आई और d प्लस आई आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ये सी एफ और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है. नाउ कमिंग टू पी आई, so the pi part will be pi is equal to 1 upon d square plus 1 into this part, so x square into sine of 2x, x square into sine of 2x. Now how to tackle this kind of numericals? The procedures are given here, so that you should apply this procedures, then definitely you will understood how to solve such a kind of a numericals. तो देखो क्या है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स इंटू वी, तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी सपोज कंसिडर कर लो ये है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, ये आपका x है तो एक्स स्क्वायर हो गया, v है तो v मतलब साइन 2x kept as it is. So coming to this part, how to tackle this numerical. Just a second. Huh? Okay. So y is equal to, what is the procedure, you can just see to observe that x पहले लिख दो, x मतलब ये part हम लोग लिखेंगे, so we should writing here, that is x square, then minus 1 upon f of d means 1 upon d square plus 1, d square plus 1, then what is f dash of d, मतलब डेरिवेटिव लेना है, तो f dash of d डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, d स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2d, ओनली 2d प्लस 1 तो विल बी 0. ये ब्रैकेट आपको कंप्लीट करके यहाँ पे लिखना है. Then it is, what is the formula, that is next what we have to apply here, you can just see to it that into 1 upon f of d into v, so into 1 upon f of d means d square plus 1 into sine of 2x into sine of 2x. So this is the result we getting after applying this formula. अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम लोग.
फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो कुछ फिलहाल सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं, पहले इस पार्ट को देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर दैट माय वर्ड्स, whenever d square is there present in terms of in sine or cosine format, you have to put as a minus a square pehla. So you can just see that is what is your a is 2, while putting here 2 square as 4, but minus 4 plus 1 you will getting what, minus 1 by 3. So I'm just writing here y is equal to x square minus 1 by d square plus 1 into 2d. This will becomes minus 1 by 3 into sine of 2x, if I'm not wrong, sine of 2x. So this is the result we are getting after simplifying the terms. अब इसको आगे फर्दर, तो माइनस 1/3 को मैं बाहर भेज सकता हूँ, because that term is, we can say that it is a multiplication term. Y equal to minus 1/3 outside, what will be remaining? So x square into sine 2x एक्स स्क्वायर इंटू साइन टू एक्स, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ ये टर्म्स को, तो माइनस 1/3 सबके साथ आएगा, तो मैं इसलिए माइनस 1 और साइन टू एक्स भी सबके साथ आएगा, बट यहाँ पे कुछ वर्क होगा, इसकी वजह से इसको लिखना पड़ेगा हमको। देन माइनस 2 बाय डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये 2 को इधर लिख दिया, इंटू डी इंटू साइन 2x, डी इंटू साइन ऑफ 2x, और ये टर्म कंप्लीट। So just see to it that this is again multiply with the sin 2x. कुछ वर्क बहुत हार्ड नहीं है। sin 2x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, ये सभी को तो पता होगा sin 2x का डेरिवेटिव, that is you will getting 2 into cos 2x. So I'm just writing here step by step, y is equal to minus 1/3 x square sin of 2x, derivative of sin 2x is 2 into cos 2x, that 2 will become 4, so minus 4 upon d square plus 1 into cos of 2x. Now again we have to apply the same concept here, similar concept we should apply. If you remember, whenever d square is present in the numerator in a f of 1 upon f of d form, you have, and trigonometric functions are there, you have to square that a, so that is a square of 2 is 4, but you have to put at minus, so minus 4 plus 1 you will getting minus 3, तो माइनस 4 प्लस 1 यू विल गेटिंग माइनस 3। अगर जीरो होता तो आगे के प्रोसीजर आपको पता है क्या करना रहता है, बट ये जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है। सो माइनस 4 प्लस 1 minus 3, so minus minus it will becomes plus 4/3. At the end we can write as y is equal to minus x square sine of 2x by 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, इसको लिखता हूँ 4/9 into cos of 2x. So this is my we can say that pi, this is my pi for this respective solution, and at the end we have to write the complete solution. सर वो -4/9 आएगा ना? हाँ -4 because it is already minus minus, so minus minus again minus, so it is -4/9. So complete solution will be y is equal to our, if you remember, that is a p complementary function was e raised to 0x c1 cos x plus c2 sin x. So I'm just writing directly here c1 cos of x plus c2 sin of x
and this is the solution. So minus x square sine of 2x by 3 minus 4/9, अगर चाहिए तो कॉमन निकाल दो -1/3, तो अंदर ब्रैकेट में डायरेक्ट दोनों प्लस लिख देंगे, बट देयर इज नो यूज, so we can write kept as it is, cos of 2x, and this is our final solution for this respective linear differential equation with constant coefficient when particular integral is algebraic into trigonometric, because x square is my algebraic functions, sine 2x is my trigonometric. So hope the things are clear to everyone, किस तरह न्यूमेरिकल्स को टैकल किया गया है, किस तरह सॉल्व किया गया है. I'm just showing this part again. So just see to it that what we applied and how we got. You should remember this formula. That's it. No uh, other procedures we applied here more. Only we just apply the basic concept here, or the basic formula we applied here. कोई और ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके हमने रिजल्ट यहाँ पे लाया है. So if anyone having any doubts regarding this problem, then just ask or just let me know so that I can tackle your doubt. If no doubt, I will solve one more numericals, because this is not a biggest सर difficult method. Yes, सर ये v log x भी हो सकता है ना? नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शंस का आपने पढ़ा है क्या होता है पी आई? उसको सर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे ना तब? लॉगरिथमिक आपको नहीं मिलता है बेटा. ओके सर. हाँ, आप जो पी आई पढ़ते हो, दैट पी आई पार्ट इज ओनली algebraic, exponential and trigonometric. In case if logarithmic is given, in case, then we have to convert in terms of exponential. That is your right. बट आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलते हैं एग्जामिनेशन में कि आप उसको कन्वर्शन वगैरह करो, बिकॉज ऑलरेडी इट इज टेकिंग टू मच टाइम. तो सर ऑलरेडी, अगर लॉगरिथमिक रहा तो उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके तब भी कर सकते हैं ना हम लोग? तो वही बोल रहे हैं ना, अगर लॉगरिथमिक में दिया बाई चांस, तो आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके नहीं मिलेगा. ओके सर, थैंक यू. Now one more numericals we have to tackle here. Last numerical for this part, because it's a very simple part. सिर्फ फॉर्मूला आपको अगर दिमाग में है, then definitely you can tackle. अगर फॉर्मूला नहीं आते तो very difficult to solve such a kind of a numericals. Now see, the next numerical is, किसी को और कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क. इफ नो डाउट्स आई एम प्रोसीडिंग. Unmute and say okay, no worries, I will check a later message. So slide down. Now see, next question. Solve d square plus 4 into y is equal to x into sine square of x. So very easy numerical is this, because already we tackle such a kind of a numericals. So solution of this part will becomes, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही मुझे इसका आंसर बताएगा. Hope the screen is visible. So I'm just taking the name of the students, so only that students can comment. Ashutosh Upadhyay, please just let me know what will be the roots of this d square plus 4. Ashutosh Upadhyay.
रूट क्या होगा डी स्क्वायर। बाकी लोग चैट पे भी मत लिखना प्लीज आंसर। आशुतोष उपाध्याय, what will be the roots of d square plus 4? Just comment in a chat box or either you have to on your mic and please speak up. What will be roots of d square plus 4? Ashutosh Upadhyay, plus minus 2i. Very good. Fine. Now the next Gautam Jethwa. What will be the CF function? CF क्या आएगा? If d is equal to plus minus 2i, then what will be the CF equation? Can you comment on this? Gautam Jethwa, either comment in a chat box or either you have to speak up with your mic. Guys, it is my request you should carry your mic or a earphone during the lecture hours because you need to speak up. आपको बोलने की आदत लगनी चाहिए. Are you there? Hi. बिपिन कुमार यादव, मैंने आपसे तो नहीं पूछा आंसर. Just wait. I said मैं आप लोग में से किसी का नाम दूंगा. Your time is over, dear. Okay, Bipin Kumar Yadav, just tell me what will be the या तो ऐसा आई लिखोगे तो फिर मेरे को समझ में आएगा आई आई एम ट्राइंग हेलो टू से सर। दैट। हाँ हाँ बोलो बिपिन कुमार यादव। आपको अगर बोलना हाँ है यस तो हुआ। आपको बोलना है तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखो कि मुझे बोलना है, लेकिन आप खाली लिखोगे आए तो मुझे थोड़ी समझेगा। ओके सर। या लो बोलो चलो। व्हाट विल बी सर 1 इक्वल्स टू ई रेस टू 0 ब्रैकेट C1 cos 2x माइनस C2 sin 2x। माइनस वाई इट यस इज सर, माइनस। प्लस और माइनस 2 आएगा ना सर। हाँ तो माइनस क्यों आएगा? सर वो रूट में माइनस आएगा ना सर। क्यों माइनस क्यों आएगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। My dear student, it is plus as I mentioned that earlier during the explanation of complementary function or auxiliary equation, whenever you are getting a roots of like plus minus I, because जब complex number का introduction आपने पढ़ा था, that time again you uh, learn that is a z equal to x plus iy or a plus ib, then a minus ib is there. So जब भी हम यहाँ पे रूट्स जब आप लिखते हो दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर एट एज ओनली पॉजिटिव थिंग्स, no need to consider you have to as a negative things. So you should be careful about this thing because देखो रूट्स आपने निकाल लिया, आपको पता है कैसे लिखना है, लेकिन एक साइन की वजह से आपका पूरा 2 मार्क्स जीरो हो जा रहा है. तो प्लीज टेक दिस थिंग सीरियसली बिकॉज यहाँ पे आप रॉन्ग लिखोगे सी एफ, लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन में भी रॉन्ग लिखोगे तो अल्टीमेटली आपके 2 मार्क्स लॉस हो गए. तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, नाउ कमिंग टू डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर सी एफ. so the CF equation y is equal to this part will becomes e raised to 0x e raised to 0x. किसी को नहीं समझेगा तो प्लीज आज c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x. so this is my CF equation. 0x नहीं भी अगर लिख रहे हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट मेरी आदत है लिखने की इसलिए मैं लिखता हूँ कि रियल पार्ट हमको नहीं मिल रहा है इसलिए. नाउ कमिंग टू पी आई. पी आई इज इक्वल टू, फिर से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 1/d² प्लस 4 into x into sin square x. Now be ready.
I'm asking a question. The pi is written as 1 upon d square plus 4, d square plus 4 ही लिखा हूँ ना, d square plus 4 Harsha. Harsha, the function is, you can see that 1 upon f of d means 1 upon d square plus 4 into x into sin square x. प्रोसीजर क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को के साथ मैं क्या करूं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का तो ऐसा कोई फॉर्मूला देखा नहीं था मैंने कि साइन 2x साइन ए एक्स का फॉर्म देखा था, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स। तो यहाँ पे मेरे को साइन स्क्वायर एक्स मिल रहा है, तो व्हाट शुड आई अप्लाई और व्हाट शुड आई डू? हर्षा, Harsha, at least comment you are listening my question, whether you are understanding or not, at least आप कमेंट तो करो कि आपको क्वेश्चन समझा या नहीं समझा जो पूछ रहा हूँ। अदरवाइज सीरियसली आई विल मार्क एज एन absent अगर आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। जस्ट यू स्टॉप, नो रिएक्शन either mic or either in a chat box, so I can consider that is Harsha. कम ऑन, लेक्चर में आप हो लेकिन आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा। दिस इज अ सीरियसली डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, हाउ टू ऑब्जर्व दैट इज द स्टूडेंट्स आर एक्टिव और इनएक्टिव, so that I can okay. Sanika Bhuir, you can go ahead. Yes, sir. Sir, sin square x को 1 minus cos 2x by 2 के फॉर्म में 1 लिखेंगे। minus 1 minus cos 2x whole by 2. okay, fine, thank you. Very Thank good. you. So we should remember that that is because बहुत बार ऐसा होता है कि हम साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली अप्लाई करने चले जाते हैं और ध्यान में नहीं आता है कि इधर स्क्वायर है और इधर ए को 1 कंसीडर करके यहाँ पे रख के माइनस ए प्लस वैसा करके, एंड वी मेनी टाइम्स वी फेल, मतलब बहुत बार ऐसा होता है और हम करते चले जाते हैं और लास्ट में हमको याद आता है कि अरे साइन स्क्वायर एक्स उधर था। तो you should remember these things, multiple things we required, not required power. So multiples अगर यहाँ पे है, चाहे 40x रहे sin 40x, तो भी उधर कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं होता है। So y is equal to, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो x minus the formula we should apply here, that is x minus 1 upon f of d means 1 upon d square plus 4 into derivative of this part, so you will getting 2d only, then 1 upon f of d means d square plus 4 as it is into v. This is my v, this is x, so sine square of x as it is. So sine square x को यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक करके लिख सकता हूँ मैं 1 minus cos of 2x divided by 2, या ऐसा करूं मैं, अभी क्वेश्चन फिर से मेरा है, बहुत सिंपल मेथड है, इसके लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो प्लीज टेक अ नोट दिस पार्ट कि आप लोग कितने एक्टिव हो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। या तो मैं ऐसा ये सॉल्व करूं और आइदर y is equal to, I'm just writing here 1 upon d square plus 4 into x into 1 minus cos of 2x डिवाइडेड बाय 2। मतलब ऐसा, मतलब ये एक स्टेप दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है।
उसके बाद यहाँ पे v वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो डायरेक्ट ये मेथड पे ये स्टेप पे हम आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप मैं आपको शो करूँ। उसके बाद डायरेक्ट ही मैंने v वाले पार्ट को, बिकॉज यहाँ पे इसके बाद भी डायरेक्ट आओगे तो x माइनस वन बाई डी स्क्वायर प्लस टू डी इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वही उसी फॉर्मेट में आपको आना पड़ेगा। नाउ हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, किस तरह इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सकता है। 1/2 we can take as a common factor, 1/2 we can take as a common factor, पूरा साइड में बाहर रख देता हूँ 1/2 x माइनस वन बाय डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू डी। नाउ जस्ट सी टू इट दैट, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग दिस थिंग, x/2 एक मिलेगा आपको, या 1/2 इफ यू आर टेकिंग आउटसाइड तो x माइनस एक्स कॉस 2x, तो वो जो x मिलेगा उसमें तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो फॉर्मूला आपको पता है वो 1 प्लस जेड रेस टू माइनस वन वाला, या 1 माइनस जेड रेस टू माइनस वन वाला। और दूसरा एक x इंटू कॉस 2x होता है, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट सी टू इट दैट, मैं वो चीज़ पहले मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, मैं पहले डायरेक्टली x इंटू वी, ये v इसको पूरे को v कंसिडर करके इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। अब ये x माइनस वन बाई डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू डी एज इट इज़। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से सेपरेट करते हैं। तो देखो 1/2 तो आपने बाहर निकाल दिया है, तो 1/d स्क्वायर प्लस 4 एक टर्म आपको मिल रहा है, अगर चाहिए तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, एंड माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे दो टर्म्स आपको मिलेंगे। नाउ सी दिस इज वन, आपको मैंने समझाया है पहले भी ये चीज, इफ देर इज कांस्टेंट टर्म्स आर प्रेजेंट मींस इट इज एक्सपोनेंशियल इज प्रेजेंट, मतलब e रेज टू 0x वहां पे प्रेजेंट है। So we can take this is e raised to 0x. Just remember these things or my words, this part. e raised to इधर 1 है सिर्फ और सिर्फ, मतलब e raised to 0x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो d के जगह पे आप 0 पहले रख दो, तो you will getting 1/4 only. So y is equal to 1/2 x minus 1/d square plus 4 into 2d, what I will getting after solution of this part 1/4। अगर किसी को प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो यू कैन आस्क। नाउ हियर इसको अभी सॉर्ट आउट करना है, तो इसका सॉर्ट आउट ऑलरेडी आपने देखा है पहले भी, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डी स्क्वायर प्लस 4 है, इसको स्क्वायर करो, मतलब पावर 4 करोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4, यू विल गेटिंग 0, नो वे। सो अब ये तो सॉल्व नहीं होने वाला है आपका, तो क्या प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं? कैन एनीवन कमेंट ऑन दिस पार्ट? एनीवन? यस, संदीप कुमार, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, वो फॉर्मूला यूज करेंगे हाँ, कौन सा करेंगे फॉर्मूला? वो सर। फॉर्मूला x अपॉन 4 इंटू साइन 2x। x/4, हाँ x/4 इंटू साइन 2x। यस सर। ओके, ये राइट है फॉर्मूला? यस सर, वो x अपॉन 2a इंटू साइन 2a आता है ना, उसका फॉर्मूला। हाँ, नहीं, मैं बाकी लोग से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं, आपने तो बता दिया। नाउ आई एम आस्किंग विद द अदर स्टूडेंट्स, कैन आई गो अहेड विद द संदीप कुमार, whatever he commented? विपिन कुमार यादव, नो। रोशन लिम्बा नहीं, अगर नहीं तो कौन सा फॉर्मूला? जस्ट लेट मी नो और टेल मी। सर न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू d। न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ले लेंगे।
Okay. Okay, Raj, you are agree with this part? Okay. चलो दोनों करके देखते हैं. We have to see to it that both the part, as I think the first was convinced by the students as x by 2a, if I'm not wrong, यही आपने कहा है मेरे को, और sin of as ax, यही फॉर्मूला आप शायद मुझे यूटिलाइज करने के लिए कहा गया है पहले. एम आई राइट संदीप कुमार, ये फॉर्मूला आपने कहा था. ओके. एंड द सेकेंड वन इज कमेंटेड बाय द स्टूडेंट्स रोशन, that is we have to take in a numerator as x, and in denominator we should take the derivative of this d square because 4 will be 0. तो दोनों अप्लाई करके देखते हैं, दोनों मतलब देखते हैं रिजल्ट विल गेटिंग द सेम और डिफरेंट. यस, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? एनीवन? ओके, थैंक यू. नाउ सी, so first I am applying this formula. So x by 2a, here a is my what? 2, so this will becomes minus x by 4 because a is my 2, and this is we have to write as a sine of 2x. ये मुझे मिलता है, इसको इस तरह लिखता हूँ. लेकिन अगर if I apply the same things whatever the Roshan was told, that is y is equal to, or I am writing here only 1 by 4 minus x by 2d into cos of 2x. Now if you can see that is a Roshan, if I am going to take the integration of cos 2x, cos 2x का अगर इंटीग्रेशन लूंगा देन आई विल गेट sin 2x by 2, और मुझे यही चीज मिलेगा. तो आपने आप दोनों जो है वो दोनों ने सेम चीज कहा है, कोई डिफरेंट नहीं. खाली रोशन जो है, रोशन ने उस चीज को इवेल्युएट करके बताया है और आपने डायरेक्टली फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया है. बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज पॉजिटिव मीन्स प्लस रहता है, और sin 2x by 2 होगा. that 2 2s are 4, so you will getting x by 4 into sin 2x. So both are the things are the same, so whatever you are going, both are the things are the similar things. Hope these things are clear. Okay, so either you should remember the direct formula, जैसा मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, या तो आपको प्रोसीजर याद होगा. जब भी कहीं अटको तो ऊपर x ले लो, नीचे डेरिवेटिव लेके आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ो. So whatever you think perfect for you people, you can consider. So moving ahead with this part, we should multiply this part. So y is equal to 1 by 2. See, x by 4, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं. तो x by 4 minus x square by 4, और बेटर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली 4 को 1 by 4 को आउटसाइड कर देते हैं, तो बहुत इजीली हो जाएगा, लिखने में अच्छा रहेगा. So taking 1 by 4 as a common factor means, so y is equal to 1 by 8, ये 1 by 2 था. Now see, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2x. नाउ अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज 1, बिकॉज 1 by 4 तो बाहर निकल गया 1. सो माइनस we should write as 1 by d square plus 4, minus, sorry, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है. अदरवाइज हम मिस्टेक करते हैं.
2 as it is, and derivative of 1 we have to take as a d of 1. ये पहला टर्म मल्टीप्लाई मैंने किया है। फिर सेकेंड टर्म भी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे जाएगा, दोनों दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अगेन 2 बाय डी स्क्वायर प्लस 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x। जो भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं कि x वैसे ही रहेगा, साइन 2x आ जाएगा वहाँ पे x बिफोर सिर्फ x इंटू साइन 2x। Now hope I'm clear with the multiplication part. Hope I'm clear with the multiplication parts, and this सर वो बीच में प्लस आएगा ना? this part is plus. Yeah, both are the plus because minus minus. This part is plus because this is minus, so we should take minus minus. This part as minus kept as it is. The first term will be same as it is minus. Only the second part is plus. Because minus 1 by d square plus 4 into 2d into 1 by 4. So this part kept as it is minus, rest is plus. Now see, derivative of 1, as all of you are aware about this part, that is whenever we have to take the derivative of any constant term, we are getting 0. So this whole part is going to be a 0. देखो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि कोई अलग कोई x नहीं है कुछ नहीं है तो क्यों डेरिवेटिव ले रहे हैं, नो वे, दिस इज अ कंप्लीटली सेपरेट थिंग्स। वंस यू डिफाइन दिस फंक्शन, इसके बाद जो भी टर्म इस ब्रैकेट में आएगा या जो भी टर्म आएगा वो जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो जो भी टर्म है, as in a first lecture if you remember I clearly told whenever d into anything मतलब you have to take the derivative of that respective part. So d into this bracket means we have to take the derivative of this bracket, that's it. So this part is 0. Here we have to take derivative because derivative of 1 is 0, 0 into anything or 0 upon anything, I think it is considered as a 0. Now derivative of x into sine 2x, x into sine 2x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल पता होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वी शुड अप्लाई द सेम रूल हियर. So y is equal to 1 by 8 x minus x square sine of 2x, this is 0, y 0, hope these things are clear, plus 2 upon d square plus 4. What will be the derivative? So you can just see that first as it is, derivative of sine 2x as cos 2x, derivative of sine 2x is cos 2x and into 2, so 2 I am writing here, 2x cos 2x plus sine 2x as it is, and derivative of that x is 1, so we can write as it is. So hope these things are clear. अभी आगे बाकी है थोड़ा सा प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रॉब्लम है ये यहाँ पे फिर से फॉर्मुलाइज करना होगा आपको, ये चीज ध्यान में रखना. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट sin 2x, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे. सो y इज इक्वल टू 1 by 8 x minus x square sin 2x. Now see, plus 2 to the 4 upon d square, एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, d square plus 4 x into cos of 2x, ये चीज थोड़ा ध्यान रहे आपको, प्लस 2 by d square plus 4 into sine of 2x into sine of 2x. फिर से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आएगा ही डेफिनेटली. थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर जाएगा. अभी देखो ये जीरो नहीं, ये जीरो हो जा रहा है, सॉरी जीरो नहीं हो रहा, बोल रहा हूँ. दिस पार्ट इज अगेन गोइंग टू बी अ जीरो. सो जैसे आपने प्रोसीजर ऊपर लिखा है x बाय 2a इंटू वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, या जो x अपॉन इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो वो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग. तो y इज इक्वल टू 1 by 8
x minus x square sine of 2x plus, you can just see to it that this part clearly what formula we have to apply. 4 is a constant part, so I'm taking the 4 as it is, और यहाँ पे एक bracket ले रहा हूँ मैं. Just a second, either taking this bracket, we should take curly bracket. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ बिकॉज दिस इज x, सो x माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, 1 upon d square plus 4 into derivative of this part as 2d into 1 upon d square plus 4 I think it is a continuous term will going on. Just a wait. Once I write, then I will communicate with this part. Cos of 2x. First, we have to tackle this part. So plus, we have to solve this part first because we written this part as it is. So sine 2x. While putting minus 4 plus 4 is 0. So this is not acceptable. So we can write this part as 2x by 4 means x by 2, and this is cos of 2x. If I'm not wrong, because we taken as it is, or minus sign will be there because sine wala term hai, so we should take as a minus of this part. बिकॉज आप खुद ही एक वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले से रख के, माइनस एक्स बाय, तो एक्स बाय यहाँ पे अगर रखोगे तो एक्स बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज 2d एंड साइन 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x लोगे तो यू विल गेटिंग माइनस कॉस 2x, सो यू विल गेटिंग माइनस एक्स बाय 4, बट ऑलरेडी ऊपर 2 था, दैट्स वाई 2 गेट कैंसल, सो यू विल गेटिंग दिस पार्ट. अब यहाँ पे एक टर्म हमारे लिए थोड़ा सा क्वेरी वाला ये चीज़ है, क्वेरी नहीं खाली रिपीटेशन होने वाला है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको रखना जरूरी है ये चीज के लिए. नाउ सी, already we solved such a thing, so such a concept in a earlier, if you remember, where it is, that is x by 2d, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर, what you will getting again x by that is 4 into sin 2x. फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, when you are going to multiply with this part again with this term, then you will getting this part, फिर 2d लोगे, फिर से वो करोगे तो फिर से आपको डेरिवेटिव मिलेगा. That means is what I'm going to conclude with this part. ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कभी कभार, so that time you have to convey with this result, that is it is a continuous process of a differential equation because these things are not going to be ended. आप कितना भी इसका पी फाइंड आउट करते चले जाओ, ये मस्ट गो ऑन चलते जाएगा, ये चीज मस्ट गो ऑन चलते जाएगा. तो जैसे यहाँ पे हम लोग सेकेंड टर्म तक आ चुके हैं, सेकेंड पार्ट तक आ चुके हैं, तो ऐसे टाइम पे हम लोग इस पार्ट को नहीं कर सकते हैं फर्दर सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसके लिए स्टेटमेंट एक लिखना बहुत ज़रूरी है. दैट स्टेटमेंट यू शुड राइट एज इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अ पीआई और पर्टिकुलर इंटीग्रल. बिकॉज आप अगर ऑब्जर्वेशन करोगे, एकदम सिंपल माइंड से ऑब्जर्वेशन करोगे, what result you are going to get after simplifying this part. सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज x by 4 into sin 2x. x by 4 into sin 2x, फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा, what you will getting x square into x square by 4 into sin 2x, वो पार्ट केप्ट एज इट इज हो जाएगा. फिर यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई होगा तो x into sin 2x का, जैसे ऊपर आपने ये चीज़ यहाँ पे किया x into sin 2x का, वो चीज़ आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में मिलेगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस पार्ट एज वी शुड केप्ट एज इट इज हियर. इसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है इस प्रॉब्लम का. इसके बाद एक और काइंड ऑफ सॉल्यूशन इसका डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग रियल पार्ट ऑफ
करके सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली विल व्हेन वी विल गेटिंग दिस पार्ट और दिस रिजल्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। और क्योंकि इसको थोड़ा सा कंक्लूजन में लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चले जाएगा, ये प्रोसेस आपका स्टॉप नहीं होगा। आप एक नहीं 10 बार भी अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करते जाओगे, ये सिर्फ एक्सटेंशन होते जाएगा, कंप्लीटली एक्सटेंड होते चले जाएगा। दिस थिंग्स आर नेवर गोइंग टू बी स्टॉप, सो वी शुड स्टॉप हियर। यहाँ पे मैं रुका रहा हूँ इसको। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो इसके आगे इसको रियल पार्ट बेसिस पे कंसिडरेशन करके, इस प्रॉब्लम को रियल पार्ट बेसिस पे कंसिडरेशन करके किस तरह सॉल्व करते हैं, दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन। बिकॉज इसमें एक चीज़ है कि जो चीज़ अगर कंटिन्यूसली आपको मिलेगा तो उसको एक कंसिडरेशन करके सॉल्यूशन ला के उसका एंड पॉइंट पे पहुंचा जाता है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा किस तरह सॉल्व किया गया एंड ऑल दिस, ऊपर के न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व किए गए हैं, हाउ वी टैकल दिस न्यूमेरिकल। बट कोई कोई प्रॉब्लम में आपको कंटिन्यूएशन मिलेगा तो उस कंटिन्यूएशन को किस तरह टैकल करना है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं मिलता, रिजल्ट हमको मिल जाता, तो हम लोग यहीं पे गाड़ी अपना स्टॉप कर लेते, आगे बढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था, बिकॉज टाइम इज नॉट इनफ टू सॉल्व विद द रियल पार्ट। सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ इसको। ये हमने रॉन्ग नहीं किया है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं किया है, लेकिन इस प्रॉब्लम को आइदर यू शुड राइट इन अ स्टेटमेंट, मैं बताऊंगा कैसे नेक्स्ट लेक्चर में, यही इसको ही हम लोग आगे कंक्लूजन में लिख सकते हैं, या फिर उसको रियल पार्ट का यूटिलाइज करके सॉल्व किया जा सकता है, जो एक ऑलरेडी और एक मेथड है आपका, नेक्स्ट मेथड के बेसिस पे उसको जाना जाता है। तो वो मेथड भी हम लोग सीखेंगे व्हेन कंटिन्यूएशन प्रोसेस आर देयर। इसको यहाँ पे स्टॉप करके आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख के कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग, तो हमारा ये रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, स्टॉप हम लोग करेंगे। बट उस रिजल्ट को यूटिलाइज करने की, क्योंकि कैसा है हम लोग फाइनल रिजल्ट में, इफ़ यू रिमेंबर, इतना सारा आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इतना सारा पीआई आपने सॉल्व किया, कहीं पे भी फाइनल रिजल्ट में और कंप्लीट सॉल्यूशन में ये डी नहीं दिखता था। अगर आप देखोगे, जैसे ऊपर के न्यूमेरिकल देख लो, ये ऊपर का ही न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो डी कहीं पे है फाइनल रिजल्ट में या पीआई के सॉल्यूशन में नहीं। मीन्स वी शुड हैव टू रिमूव दिस ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर रिमूव नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली हमारे साथ जा रहा है और ये कंटिन्यूसली जाएगा। So that's why there is one more method, that is we have to consider it as a real part or as well as imaginary part when the continuation problems are there. So that problems we will see in a next lecture. Just wait, I will take the attendance. Don't left. Roll number 1082, क्या बोला था, 1082 129, हाँ 1082 129 will meet at 4:30. We things in keep things in your mind without failing. You should fill your mentoring form by today itself, because अगर आप नहीं fill करते हो and all the things, ये आपका पूरा 4 साल का मेंटरिंग फॉर्म है। फर्स्ट ईयर में आप अगर फिल करना भूल जाते हो, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, तो इट विल क्रिएट एन इशू, प्रॉब्लम होगा आपको। तो फॉर्म फिलअप करना है, सिर्फ गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पे आपको जो जो डिटेल्स है, डेटा है, मैं खुद प्रोवाइड दूंगा यहाँ पे, वो डेटा खाली आपको लिख के आपको फिल करना है अपने ईमेल आईडी से, एंड इट्स इनफ। सो रोल नंबर 1082 129, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। 4:30 शार्प आई विल लॉन्च अ लिंक, सेम क्लासरूम लिंक से ही हम लोग आएंगे, मैथ्स के क्लासरूम लिंक से। दैट टाइम विल मीट एंड टुमारो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।